ओके, तो ओवर हियर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टिश्यू सिस्टम। तो जब हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टिश्यू, राइट? सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells which are having similar function and a similar origin. They are also in similar in structure. क्लियर? सो यहाँ सी जो टिश्यू सिस्टम हम बात करेंगे उसके अंदर हम स्पेसिफिकली कुछ अलग अलग टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, right? So over here there will be a three tissue systems in the vascular plant, that is known as dermal tissue system. One is dermal tissue system, second is vascular tissue system जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था xylem and phloem के बारे में, third one is the ground tissue system, and all of these they are originated from the meristematic cells, right? Now you all are aware about the meristematic tissues, right? जो they are having the capacity to divide themselves, अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी उसके पास सबसे ज्यादा रहती है. So in this case, when we are discussing about three different types of tissue systems, each system specifically usually they are consist of only one type of tissue, that you are already aware about that, and the association of the tissue will perform a common function, right? So they are epidermal tissue system, fundamental, or you can say ground tissue system, vascular tissue system, etc., etc. Right? Let's start with this first one. The first, that is the dermal tissue system. सो डर्मल दैट इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, दैट इज डर्मा. डर्मल जो है ना, ग्रीक वर्ड डर्मा से आया हुआ है. एंड डर्मा का मतलब क्या होता है? डर्मा मीन्स स्किन. डर्मा का मतलब होता है स्किन, राइट? सो द डर्मल टिश्यू सिस्टम इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट. क्या है? आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है. आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द प्लांट. The dermal tissue begins as parenchyma cells, which are then modified to form various types of cells that protect the plant, that is from physical damage and desiccations. दो तरीके से प्लांट को वो बचाता है, एक तो फिजिकल डैमेज से और दूसरा जो है वो है डेसिकेशन. तो इन टाइप स्पेसिफिकली टिपिकली अगर हम बात करें, डर्मल टिश्यू सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ लेयर विद देयर सेल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस secure boundary, that is known as epidermis. So that is also known as epidermal tissue system. So I can say this forms the outer covering of the plant. It is in direct contact with the external environment. External environment के direct contact में रहता है. It performs manifold functions like protection, absorption, excretion, secretion, gaseous exchange, and so on, control of transpiration and so on. So several functions are being performed by this epidermis, इस टिश्यू के थ्रू, राइट? नाउ इन प्लांट, अगर मैं बात करूं प्लांट की, सो इन प्लांट्स दैट हैव मोर देन वन ग्रोइंग सीजन, the epidermis of the stem and root is replaced by a protective tissue, and that is known as periderm. So in plant that have more than one growing seasons, एक से ज्यादा growing season होती है, and the epidermis of the stem and root is replaced by a specific protective tissue that is known as periderm. The periderm consists mainly of a non-living cork. They are consist of mainly non-living cork cells that protect the plants from predators and water loss. What do you understand by epidermis? Epidermis से आप लोग क्या समझे? It is the outermost layer of all organs of primary plant body. एक प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है उसका आउटरमोस्ट कवरिंग है. सो एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एपिडर्मिस का अगर फंक्शन की मैं बात करूं, सो इट्स प्रोटेक्टिव, राइट? इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, राइट? फीचर्स है कुछ एपिडर्मिस का. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर नेरियम नाम की अगर एक एक्सेप्शन की बात करूं, सो स्पेसिफिकली दिस नेरियम इज मल्टी लेयर. सी, नोट करिएगा इस स्पेलिंग को. नेरियम एक प्लांट है, स्पेसिफिकली उसकी अगर हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ आपको ये समझना है कि जो नेरियम होता है प्लांट वो मल्टी लेयर होता है. मल्टी लेयर, राइट? क्योंकि एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है, जिसका होता है सिर्फ सिंगल लेयर का होता है. लेकिन नेरियम एक ऐसा है जो सिंगल लेयर नहीं, मल्टी लेयर का होता है, ठीक है? सो the dermal tissue can become more modified through the production of hair like extension. अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे इस सिस्टम के अंदर, डायग्राम में देखो, यहाँ आपको
हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ये देखो छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं, राइट। सो ये जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो ज्यादा कुछ मॉडिफाइड होता है जब उसके अंदर ये हेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ट्राइकोम्स। सो द डर्मल टिश्यूज कैन बिकम मोर मॉडिफाइड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ हेयर like extensions, that is known as trichomes, right? Now plants may use these trichomes in order to inhibit herbivore attack. अब कोई भी आके उसको खा के चला जाएगा? नहीं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, यानी कि उसके अटैक से। किसके अटैक से? हर्बीवोर एनिमल्स के अटैक से, या फिर कोई फिजिकल या केमिकल अटैक जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पेशलाइज्ड स्टिनिंग हेयर्स ऑफ उरिटिका, उरिटिका एक प्लांट है जिसको हम नेटल कहते हैं, स्पीसीज दे डिलीवर इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स लाइक नोन एज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक इन्फ्लेमेटरी ऐसा केमिकल है जो प्रेडेटर को दूर रखने का काम करता है। क्या करता है? प्रेडेटर को दूर रखने का काम करता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें, मैं अगर आपको यहां पर बात करूं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हिस्टामाइन वगैरह का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, तो अब इसको जरा ध्यान से देखो, किस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ट्राइकोम्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, ये एक्चुअल वो ट्राइकोम्स है, दिख रहे सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल इमेजेस है। और ये जो आप नीचे का फिगर देख रहे हो ना, ये नीचे वाले डायग्राम माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। चलो आगे बढ़े। किस तरह से अरेंजमेंट होती है देखो, ये फर्स्ट आपको लिया जो बीच वाला दिख रहा है, दैट विल बी द डर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द ट्राइकोम्स, राइट। इनवाइट्स आउटर मोस्ट एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द टॉप of the epidermis there is be a thin layer that is known as waxy cuticle that is made up of fatty substance that is known as cutin. अब यहाँ हम बात जो कर रहे हैं that will be the cutin one. किसका लेयर की बात हो रही है यहाँ पर? which one? ये वाला क्यूटिन लेयर जो है, किसको कहते हैं? क्यूटिन लेयर अगर बात करें तो सबसे डायग्राम में आप देखोगे, जो फर्स्ट लेयर आपको देख रहे हैं ना, आप जो पहला जो लेयर देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? क्यूटिन लेयर। फर्स्ट वन जो है उसको क्या कहते हैं? क्यूटिन लेयर, ठीक है। नाउ ऑन द टॉप ऑफ द सेल दैट स्पेसिफिकली वैक्सी होता है। अब ये वैक्सी क्यों होता है? ये सब्सटेंस जो है वैक्सी लेयर क्यों बनता है? एनी आइडिया? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट ओनली एंड ओनली दैट द सेल्स जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो इन दैट केस ये सारे के सारे सेल्स जो है ये कोई भी मटेरियल को इन कर दे आउट कर दे, ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई ये एक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर बना हुआ होता है। द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। किसी भी चीज को अंदर आने दे जाने दे ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। आपको भी पता है वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दैट विल बी दैट द एपिडर्मिस आल्सो हैज टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नोन एज गार्ड सेल। दो उसके बाद गार्ड सेल्स भी होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे स्टोमेटा है, राइट, उसके आसपास क्या है? दो गार्ड सेल है ना। अब दो गार्ड सेल है, उसका फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट। सो द गार्ड सेल फॉर्म टाइनी होल ऑन द लीव्स दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, स्पेसिफिकली सॉरी स्ट्रोमा नहीं स्टोमा यानी स्टोमेटा, जिसके आसपास वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। ये मान के चलिए वो जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, साइकिल आप ले लीजिए, बाइक का टायर ले लीजिए, उसकी ट्यूब ले लीजिए, उसमें हवा भर दी तो आपको कैसे अंदर मस्त पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे सर्कल फॉर्म में हो जाएगा, राइट। हम इसको क्या कहते हैं? ये आउटर मोस्ट लेयर से ओपनिंग है, राइट। ये ओपन है, कुछ भी चीज अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हवा को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सो द स्ट्रोमा अलोज गैसेस टू डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द लीव्स, दैट इज गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, इन एंड आउट दोनों। क्लियर है? चलो अब चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, यहाँ आपको समझने को मिलेगा चीजों को डिटेल में। इन दिस केस देयर विल बी एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहे हैं वहां पर स्टोमेटा को ओपन दिखाया गया है। स्टोमेटा को क्या दिखाया गया है? ओपन। ओपन मतलब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होने वाली है,
दैट केस राइट, ये आपको बीच में जो पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वहां से गैसियस एक्सचेंज है इन एंड आउट, यानी कि CO2 एंड O2। CO2 कहाँ जाएगा? CO2 इनसाइड द सेल जाएगा, जबकि O2 जो है आउटसाइड जो है सेल आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जबकि इन दैट केस यहाँ पर अगर आप देखोगे दूसरे डायग्राम में, फिगर में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गार्ड सेल्स है, यानी जो स्टोमेटा है, वो क्या है? क्लोज्ड हो चुके हैं। स्टोमेटा क्या हो चुके हैं? क्लोज्ड हो चुके हैं। राइट, क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहां मैंने आपको क्या बता दिया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात की, एपिडर्मिस की बात की मैंने आपको, स्टोमेटा के बारे में उसमें बताया। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन एंड दैट विल बी दी वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, जब हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें, जब मैंने आपको बताया था ना, ये स्पेसिफिकली हम जब पढ़ रहे थे, मैंने आपको इससे लास्ट वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था जाइलम एज वेल एज फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो it is a continuous system of tissue that conduct water, minerals and food. So you are already aware about that vascular tissue system जो होती है, that is made up of two different types of tissue, right? One is xylem and the second one will be phloem. दो है xylem as well as phloem, दो अलग अलग टाइप की सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम, और उनको कहते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। अब यहाँ जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स, जबकि फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फूड कंडक्शन का। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फूड कंडक्शन का, राइट। और दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, इनसाइड द प्लांट, राइट। तो वास्कुलर प्लांट किसको कहते हैं? जिसके पास कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आपको ये ऑलरेडी पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? So vascular plants are also called as trachophyta. देखो यहाँ लिखा है trachophyta are the plants which are having a vascular bundles. One will be xylem and second will be the phloem. Main function conduction. Short form में मैंने लिखा है. What is the main function? Conduction. अब अगर हम यहाँ xylem की बात कर रहे हैं, then xylem will going to conduct what? Water and minerals, while phloem will conduct what? Food materials, right? So each vascular bundle जो होता है वो दो अलग अलग चीजों से बनता है, xylem and phloem. Apart from that, they are also having a kind short layer that is cambium. Yeah, might be possible वहाँ cambium present भी है या नहीं भी है, right? Depends on the requirement, right? तो यहाँ additional function cambium की वजह से वो क्या provide करेंगे? Mechanical support. The additional function will be mechanical support. किसका additional? Vascular tissue system का, और ये मैंने यहाँ mention किया, it is made up of xylem as well as phloem. Clear है? एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आ रही है SAP, शेप। सो इट इज द नेम गिविंग टू द कंटेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय द xylem एंड phloem. It is the name given to the content transported by the xylem and phloem. That means all the type of content which is transported by a xylem and phloem, it is known as shape. उसको क्या कहते हैं? शेप कहते हैं, राइट। अब जब वास्कुलर बंडल की हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ डाइकोट की बात करूँ या मोनोकोट की बात करूँ, राइट, रूट स्टेम वगैरह की, तो वास्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम एंड रूट्स एज वेल एज मोनोकोट्स रूट्स। कहाँ कहाँ की बात की मैंने? डाइकोट के दोनों स्टेम्स एंड रूट्स, मोनोकोट के सिर्फ रूट्स, दे आर अरेंज इन स्पेसिफिक रिंग लाइक मैनर, राइट, रिंग वाइल। जबकि अगर मैं मोनोकोट में स्टेम रह गया था, तो मोनोकोट के स्टेम में दे आर प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड फॉर्म। समझ में आया कैसा प्रेजेंट होगा वहां पर? स्कैटर्ड। एक बार फिर बताता हूं, वास्कुलर बंडल जो होता है डाइकोट के स्टेम और रूट दोनों में, मोनोकोट में रूट में सिर्फ रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होता है। जो मोनोकोट का स्टेम बाकी बचा, उसके अंदर वो स्कैटरिंग परफॉर्म में प्रेजेंट है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, यहाँ एक टोमेटो प्लांट रखा है, इसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बताया, सेम चीज बताइए। वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टेड बाय व्हाट? जाइलम। और ये जाइलम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो है ना, एक सिंगल लाइन है। अब आपको यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि वाटर एंड मिनरल का जो कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि रूट से वाटर और मिनरल्स एक बार ऊपर आए तो वापस नीचे नहीं आए। जैसे वो बंदूक में से एक बार गोली छूट जाती ना, वापस बंदूक में नहीं आती। तो ये यूनिडायरेक्शनल पाथवे है, राइट। जबकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल पाथवे है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ये कंडक्ट कर रहा है वाटर। तो फ्लोएम
that is from leaves to the roots and other parts of the plant. ठीक है, while xylem that is from root to other part of the plant, हर एक पार्ट में जाता है. क्लियर है? चलो आगे, टाइप्स ऑफ जाइलम. जाइलम जो है उसके भी कुछ टाइप्स है, तो यहाँ पर मेंशन किए हैं. एलिमेंट्स ऑफ द वास्कुलर बंडल में जाइलम की बात करें, राइट, तो इन डाइकोट एज वेल एज मोनोकोट स्टेम द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी. डेवलपमेंट किस साइड का? पेरिफेरी साइड का, राइट. दैट इज प्रोटोजाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर पे होता है, एंड द मेटाजाइलम दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी टाइप मेटा. अब ये क्या है? जाइलम formed in primary plant body by procambium, and that is known as primary xylem. First formed primary xylem is known as protoxylem. तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि भाई प्रोटोजाइलम क्या है, व्हाट इज प्रोटोजाइलम, राइट. तो अगर मैं प्रोटोजाइलम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्रोटोजाइलम क्या है. प्रोटोजाइलम दैट इज द xylem formed in the primary plant body by procambium, that is primary xylem, and the first formed primary xylem is known as protoxylem. ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोटोजाइलम. लेटर आगे जाके अगर उसकी बात करें, सो लेटर इट विल फॉर्म दैट इज नोन एज मेटाजाइलम. लेटर आगे जाके जो फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम. क्लियर है? एंड द स्टेम्स, अगर स्टेम्स की बात करें, इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पीथ. प्रोटोजाइलम किस तरफ होगा? टू पीथ की टुवर्ड्स. पीथ कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में. पीथ सेंटर में प्रेजेंट होती है, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी. सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एंडार्क. डायग्राम देखिए, यहां ध्यान से देखिए. जो स्टेम की बात करें, एंडार्क में क्या होता है? पीथ, ये सेंटर पोर्शन जो है वो पीथ है. ठीक है. प्रोटोजाइलम इंटर साइड पे, अंदर की साइड पे प्रोटोजाइलम है, और मेटाजाइलम जो है आपको दिखने को मिलेगा बाहर की साइड पे. क्लियर है? मेटाजाइलम बाहर की साइड पे आपको देखने को मिलेगा, जबकि प्रोटोजाइलम इंटरनल साइड पे देखने को मिलेगा. इस टाइप का अरेंजमेंट को एंडार्क कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? एंडार्क. दूसरी जो अरेंजमेंट है उसको एक्स आर्क कहते हैं. एक्स मतलब बाहर, एंड मतलब अंदर. ऐसे आप याद रखिए जैसे एंडो एक्सो था. एक्स आर्क में क्या जस्ट उल्टा है. यहाँ मेटाजाइलम इंटरनल साइड पे होगा. देखो अंदर की साइड पे मेटाजाइलम है, जबकि बाहर की साइड पे प्रोटोजाइलम है. ठीक है, तो यहाँ क्या डिफरेंस हो गया? दो उल्टा, कंप्लीटली उल्टा हो गया, राइट. तो मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी, राइट, दैट इज अरेंजमेंट इज नोन एज एंडार्क. व्हाइल अगर मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स द पीथ हो, पीठ की तरफ हो, तो उसको कहते हैं एक्स आर्क. क्या कहते हैं उसको? एक्स आर्क. जाइलम कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म्ड बाय फैसिकुलर कैम्बियम, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम. अब यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम भी बन रहा है, जो मैंने जाइलम पढ़ाते टाइम आपको बताया था. ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ जाइलम हो गया. ओके, देखो किस तरीके से अरेंजमेंट डायग्राम अगर आप देखोगे, एंडार्क एज वेल एज एक्स आर्क, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, राइट. क्लियर है? चलो अब थर्ड हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की. सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और आई कैन से दैट इज द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. It is consist of all the tissue other than the vascular and dermal. आपने अभी वास्कुलर टिश्यू पढ़ लिया, डर्मल टिश्यू भी पढ़ लिया मेरे बच्चों. उसको छोड़ के जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है उन सभी को कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. उन सभी को क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. समझ में आई बात की नहीं? सो दे आर यूजुअली फॉर्म बिटवीन द डर्मल एज वेल एज वास्कुलर टिश्यू. समझ में आई बात की नहीं? तो यहां पर हमने क्या बोला? जो टिश्यू सिस्टम ग्राउंड में कंसीडर हमने नहीं किया था, वो तो या तो जाइलम में चला गया, कहाँ चला गया? जाइलम में चला गया, या फिर कहाँ चला जाएगा? उसके अलावा जो बचा वो कहाँ चला गया? ग्राउंड में. यानी कि वास्कुलर एंड डर्मल को छोड़कर जितना है वो सारा का सारा कहाँ आ गया? ग्राउंड में. उसका दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. क्लियर है? अब यहाँ बात करेंगे हम कॉर्टेक्स की. किसकी बात करेंगे हम? कॉर्टेक्स की. अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, तो कॉर्टेक्स के अंदर स्पेसिफिकली एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जो डर्मल और वास्कुलर टिश्यू के बीच में आता है.
यानी कि दोनों से मिलकर बनना है, दोनों से मिलकर बनना है. सो द स्पेसिफिकली दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन द डर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू वेयर दे आर नोन एज द कॉर्टेक्स. इन दोनों के बीच का पूरा पार्ट उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं. The ground tissue that can be appear on the inside of vascular tissue and sometimes here they are called as pith. पीथ आया था ना, आपने इस डायग्राम में देखा था, यहाँ पर सेंटर पार्ट में देखो पीथ है, सेंटर पार्ट पीथ, और ये जो मिडल वाला पोर्शन है ब्लैंक, दैट इज नोन एज कोर्टेक्स. क्लियर है? ओके. देखो ये प्लांट के ग्राउंड टिश्यू के बारे में कुछ इमेजेस फोटोज है, राइट. सो ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर, ये यहाँ पर आपको दिमाग में डाल देना, उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों इंक्लूड कर दिया, सिंपल वन, राइट. इन डाइकोट स्टेम्स, रूट्स एज वेल एज मोनोकोट रूट्स इन विच स्पेसिफिकली जो हमने अभी बात की थी ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, राइट. द ग्राउंड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स का होता है ग्राउंड टिश्यू. देखो नीचे डायग्राम से पता चल रहा है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों के तीनों प्रेजेंट है. देखो समझ में आई बात, ग्राउंड टिश्यू में. ये वाला डायग्राम देखो, ये आपको रूट का हेयर दिख रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, रूट का है, ठीक है. बाहर की साइड पे आपको बाहर की सतह पे रूट हेयर दिख रहा है. इस रूट के हेयर के आसपास का जो लेयर है पूरा का पूरा, दैट इज एपिडर्मिस. क्या कहते हैं उसको, एपिडर्मिस. उसकी इंटरनल साइड पे जाओगे तो आपको मिलेगा कोर्टेक्स. कौन सा लेयर बनेगा, कोर्टेक्स. कोर्टेक्स से इंटर जाओगे तो एंडोडर्मिस मिलेगा आपको, एक जो रेड बॉर्डर मिल रही है दैट विल बी द एंडोडर्मिस. फिर अंदर जो रेड कलर का एक क्रॉस दिख रहा है ना, दैट विल बी द जाइलम. और जो येलो येलो आपको सर्कल्स फॉर्म में दिख रहे हैं सेल्स वाला, दैट विल बी द फ्लोएम. यानी कि ये दोनों क्या है, वास्कुलर, कैन बी वास्कुलर स्ट्रक्चर टिश्यू सिस्टम. ओके. इस टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी लिखी है प्लांट टिश्यू, ठीक है. तीनों के तीनों टिश्यू टाइप सिस्टम है, यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म में दिया है मैंने एकदम. डर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है. डर्मल टिश्यू सिस्टम में टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं, फ्लैट, लिविंग पेरेन्काइमा यानी एपिडर्मल सेल्स. इन नॉन वुडी पार्ट्स देयर विल बी फ्लैट, डेड एंड पेरेन्काइमल सेल दैट इज कोर्क सेल. किसमें होगा, वुडी पार्ट. तो यहाँ से दो डिवीजन होगी, एक वुडी पार्ट, एक नॉन वुडी पार्ट. लोकेशन, आउटर मोस्ट द लेयर ऑफ द सेल. कहाँ पर लोकेशन है डर्मल टिश्यू का, तो आउटर मोस्ट लेयर में है. फंक्शन इन रूट्स, रूट के फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया. स्टेम के फंक्शन की बात करें तो गैस एक्सचेंज हो गया, प्रोटेक्शन हो गया. फंक्शन इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्या फंक्शन करेगा, गैस एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन का काम करेगा. तो ये हो गया डर्मल टिश्यू सिस्टम. नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमा, यूजुअली विद सम कोलेनकाइमा एंड फ्यूअर स्क्लेरेन्काइमा. बहुत कम होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है. लोकेशन की बात करें सो बिटवीन द डर्मल एंड वास्कुलर एंड स्पेसिफिकली इन नॉन वुडी पार्ट्स. फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट या स्टोरेज कह सकता हूं मैं रूट के अंदर. स्टेम के अंदर बोलूं तो सपोर्ट एंड स्टोरेज. लीव्स में कहूं तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है. समझ में आया कि नहीं. वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर इलोंगेटेड सेल्स है, दे आर डेड, जाइलम एंड लिविंग फ्लोएम है. डेड जाइलम एज वेल एज लिविंग फ्लोएम यहाँ है. नोट करने वाली बात है कि जाइलम जो है वो डेड रहेगा यहाँ पर, फ्लोएम जो है लिविंग रहेगा. इट ऑल्सो पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा दैट विल बी फाइबर फॉर्म. लोकेशन की बात करें तो ट्यूब्स थ्रू आउट दी प्लांट, पूरे प्लांट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. फंक्शन की अगर हम बात करें रूट के अंदर तो ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट का फंक्शन करता है वास्कुलर टिश्यू. स्टेम की बात करें तो वहां पर भी सेम ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन. एंड लीव्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम, यानी कि तीनों में रूट, स्टेम एंड लीव्स में उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सपोर्ट का. ठीक है, इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों के तीनों टिश्यूज के बारे में. देखो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर कट किया है इस प्लांट को और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से अरेंजमेंट होती है सेल की, जूम करते करके आपको यहाँ पर दिखाया है. इस तरीके से सारे सेल्स की अरेंजमेंट होती है. बाहर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है कॉर्टियम एंड ऑल एपिडर्मल लेयर होता है, इनसाइड दैट कॉर्क आएगा, फिर फ्लोएम का लेयर है एंड देन दिस विल बी जाइलम.
क्लियर है? अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स। टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स की बात करें, सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल। टोटल 3 टाइप के वास्कुलर बंडल्स है, रेडियल, कॉन्जॉइंट एज वेल एज कॉन्क्रीट, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। तो हम इनको तीनों को पढ़ेंगे एक बार। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले रेडियल की, रेडियल वास्कुलर बंडल। सो रेडियल की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल है। इन दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल अल्टरनेट स्ट्रेन्स ऑफ फ्लोएम एंड फ्लैम, जाइलम जो होता है उसकी प्रेजेंट होती है डिफरेंट रेडाई में, अलग अलग रेडियस में। Those in which the xylem and phloem lie radically side by side. For example, in root of the seed plant के root के अंदर बात करें, right? This is type of known as primitive type, and that is the radial vascular tissue. See, this will be the radial form. Radius form में present है, किस form में present है? Radius form में. Number 2, conjoint. So here, xylem and phloem are present on the same radius. सेम रेडियस में प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज नोन एज फाउंड इन स्टेम एज वेल एज लीफ। सो दोज इन विच द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, एक साइड सेक्टर है लेकिन देखो बीच में आपको अलग टाइप का लेयर देखने को मिलेगा। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो है टुगेदर दे आर फॉर्म अ बंडल लाइक स्ट्रक्चर। द टू सब टाइप्स दे आर कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। कोलेटरल में क्लोज्ड ओपन दोनों टाइप का होता है, बाइकोलेटरल जो है सिंगल टाइप। क्लियर है? कोलेटरल, अब उसकी बात करते हैं कोलेटरल क्या होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम लाई टुगेदर ऑन द सेम रेडियस, दोनों सेम रेडियस टुगेदर प्रेजेंट है इन सच अ पोजीशन दैट जाइलम लाइज इनवर्ड्स एंड द फ्लोएम आउटवर्ड्स। जाइलम अंदर की साइड पे है, फ्लोएम आउट साइड पे है। यहाँ देखेंगे अगर आप डायग्राम में तो आपको देखेंगे जाइलम अंदर है दोनों में, फ्लोएम बाहर की साइड पे है। सो हियर द फ्लोएम अकर्स ऑन द वन साइड ऑफ द जाइलम स्ट्रैंड, जाइलम स्ट्रैंड की एक साइड पे फ्लोएम है, राइट। इन द डाइकोटिलिडियन स्टेम, डाइकोट जो होता है उसके स्टेम की अगर हम बात करें, द कैम्बियम इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कहाँ प्रेजेंट है कैम्बियम? फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। सच टाइप ऑफ बंडल्स दे आर नोन एज ओपन। फॉर एग्जांपल हेलिंथस, यहाँ ओपन टाइप आप देखिए, दोनों के बीच में भी आपको देखने मिलेगा कैम्बियम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैम्बियम, जबकि क्लोज वाले में नहीं है। व्हेन द कैम्बियम इज एब्सेंट इन द क्लोज वन, द एग्जांपल इज मोनोकोट स्टेम्स। एग्जांपल यहां पर क्या लिया है? मोनोकोट स्टेम। अब बाइकोलेटरल की बात करते हैं। बाइकोलेटरल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सच काइंड ऑफ बंडल्स दैट इज फाउंड इन फ्लोएम। कहां पर मिलता है? फ्लोएम के अंदर। द फ्लोएम इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द जाइलम। अब यहाँ बाइकोलेटरल का डायग्राम देखिए, जाइलम जो है मिडल में है। जाइलम कहाँ पर प्रेजेंट है? मिडल के अंदर प्रेजेंट है जाइलम, और फ्लोएम जो है वो दोनों साइड पे, आउटर वन एज वेल एज इनर वन। देख रहे हैं आप, आउटर में भी फ्लोएम प्रेजेंट है, इनर में भी फ्लोएम प्रेजेंट है, और उन दोनों फ्लोएम के बीच में जाइलम है। एक टाइप का स्ट्रक्चर है। अब उसमें जैसे दाबेली कैसे बनती आती है, वड़ा पाव कैसे आता है, उस तरीके के बन के आता है वड़ा पाव जैसा, ठीक है, उसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है उसके बीच में आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कैम्बियम, राइट। सो सच बंडल्स आर कॉमनली फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, एंड सच बंडल्स दे आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। So those in which one type of tissue surrounds or insets the outer one, and the concentric bundles they may be of two subtypes: amphibarys, that is heterocentric bundles as found in Dracaena, Yucca, and other monocots system type. If the phloem surrounds the xylem, अगर phloem xylem के आसपास हो जाएगा, then it is amphicerebral, यानी कि leptocentric as found in many ferns. Such bundles are known as clones. देखो एम्फीसेरेब्रल में देखिए, यहाँ पर डायग्राम देखिए, एम्फीसेरेब्रल फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। एम्फी वेसल में फ्लोएम अंदर है, जाइलम बाहर की साइड पे। आपकी समझ में आया आप लोगों को ये चीज? तो वास्कुलर बंडल एक तो सिंपल होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड में कॉन्सेंट्रिक एंड कोलेटरल होते हैं, कोलेटरल ओपन, कोलेटरल क्लोज, बाइकोलेटरल। यहाँ हाइड्रोसेंट्रिक एंड लेप्टोसेंट्रिक अलग अलग टाइप। क्लियर चीज है?
ये हो गया आपका वास्कुलर बंडल। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।